Good morning, everyone. I welcome you all to our next session of error spotting. Error spotting, also known as error detection. So, a very important topic. So, take any exam. You can take any exam like SBI clerk or any clerical exams, or for that matter, any PO exams or any insurance or any regulatory banking exams. Take any exam. This is a very pivotal topic. That is error spotting. आपको ये 5 मार्क्स के लिए आएगा मतलब आएगा. ठीक है. So we have already done few lectures or we have already done few sessions on error spotting. Those who have missed it, just go and relook at those sessions or at those videos. Okay. So without wasting any time, we'll delve into this question set. अब error spotting के लिए, before going to the questions directly, I would like to guide you on how to solve this. Now, for error spotting, what you need is grammar. What you need is you should be very thorough with your grammar part. Now, grammar में आपको क्या क्या करना है? आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं. सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं. ठीक है ना? देन आपको क्लॉजेस करने हैं. You have to do clauses. Then you'll have to do conditionals. Then you'll have to do parallelisms. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी फॉर टू एक्सेल इन एरर स्पॉटिंग. Okay. I hope or I assume that everybody has completed all these things or they are decent enough in all these subjects or in the subtopics. So without wasting any time, let us delve into this question set. अब इसमें हम करेंगे क्या? What will be our modus operandi? What will be our way or what will be our strategy or what will be our style of doing solving this is that I'll be reading the sentence for you. Okay, mark my words. I'll be reading the sentences for you, and then you'll be getting roughly 1 minute to solve each question. ठीक है ना? तो आपको 1 मिनट मिलेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग दी करेक्ट आंसर्स विद यू. ओके, आई बात समझ में? सो लेट अस मूव टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. 20 questions are there in this set, so we'll be solving each and every one. Read the sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, अगर if any का मतलब अगर error होगा तो, ठीक है ना? The error if any will be in one part of the sentence. ठीक है ना? तो ये बात तो उन्होंने बता दी कि एक ही पार्ट में error होगा. The number corresponding to the part will be your answer. देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है. So the number corresponding to the part to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as option 5. अगर पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट है तो आपने ऑप्शन 5 मार्क करना है. दैट मींस नो एरर. और आपने यहाँ पर क्या करना है? इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन का अगर कुछ एरर लग रहा है तो उसको इग्नोर करके देना. ठीक है. नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. Abdul Kalam Azad in his autobiography explained if someone asks a particle question, it will give a particle answer. But if someone, अब ये हो गया आपका पार्ट वन क्या है? Abdul Kalam Azad in his autobiography explained if someone asks a particle question, it will give a particle answer. But if someone asks a wave question, it ought to give a wave answer through the proper description. ठीक है ना? थर्ड पार्ट क्या है? Through the proper description and the interplay of our goals. ठीक है? I'll read the sentence once again for you. Abdul Kalam Azad in his autobiography explained if someone asks a particle question, it will give a particle answer. But if someone asks a wave question, it ought to give a wave answer through the proper description and the interplay of our goals. So this is the question. You roughly have 1 minute to solve this, and your time starts now.
Okay, so your time is up. Your time is up. Let us look at the correct answer if there is any. मतलब कोई एरर होगा तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे. अब्दुल कलाम आजाद इन हिज ऑटोबायोग्राफी एक्सप्लेन्ड इफ समवन आस्क्स अ पार्टिकल क्वेश्चन इट विल गिव अ पार्टिकल आंसर. पार्टिकल क्वेश्चन होगा तो पार्टिकल आंसर होगा, मतलब किसी कोई क्वेश्चन किसी पार्टिकल से रिलेटेड होगा तो उसका आंसर भी पार्टिकल से रिलेटेड होगा, ये वो कहना चाहता है. तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट. बट इफ समवन आस्क अ वेव क्वेश्चन, कोई वेव का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वेव का आंसर मिलेगा, ऐसे वो बोल रहा है. लेकिन यहां पर गलती है. इफ समवन आस्क्स अ वेव क्वेश्चन इट ऑट टू गिव. ऑट टू गिव. अब ऑट टू गिव नहीं आएगा. ऑट टू गिव का मतलब क्या था, वो कंपल्शन होता है. उसमें वो आपका फ्यूचर वाला जो टेंस होता है उसको वो एम्फोसाइज नहीं कर रहा है. यहाँ पर एम्फोसाइजिंग क्या है कि इफ समवन आस्क्स, अभी यहाँ पर देखना, इफ कहां पर गया, इफ समवन आस्क अ पार्टिकल क्वेश्चन इट विल गिव. क्या आ गया, अगर इफ, ये देखो ये कंडीशनल का सेंटेंस है, दिस इज कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ समवन आस्क्स अ क्वेश्चन आई विल गिव अ आंसर. वो पार्टिकल का हो या वेव का क्वेश्चन हो, ठीक है ना. ऑट टू क्या दर्शाता है, ऑट टू इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना. ऑट टू क्या है, देखो ऑट टू जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी की करना ही करना है, यू हैव टू. तो दैट डजंट एम्फोसाइज और दैट इज नॉट कॉन्टेक्चुअली राइट. ऑट टू का मतलब ही वो, if you ought to do your duty or you ought to study hard or you ought to study regularly, you ought to revise to crack this exam. और यहाँ पर ought to क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू ought to revise regularly, मतलब आपको रिवाइज करना ही है रेगुलरली टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है ना. तो वो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी का जो काम होता है वो उसको दर्शाता है ought to, ठीक है ना. तो यहाँ पर ought to नहीं आना चाहिए, ought to की जगह पर आना चाहिए था it will give a wave answer. आई बात समझ में, क्या आएगा, इट विल गिव अ वेव आंसर. आई बात समझ में. ऑट टू की जगह पर होना चाहिए था विल गिव. तो यहां पर आपका आगे भी देखते, अब देखना एक पार्ट में आपको हमें मिला एरर. अब यहां पर हमने क्या था, देखा था कि द एरर विल बी इन ओनली वन पार्ट. एरर कहां पर होगा, सिर्फ एक ही पार्ट में होगा. तो हमें मिल गया कौन से पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है. तो हमारा आंसर क्या होगा, इट विल बी टू. बट इफ समवन आस्क्स अ वेव क्वेश्चन इट ऑट टू गिव. ऑट टू गिव नहीं आएगा, इसकी जगह पर आएगा इट विल give. It will give a wave answer. I hope you have got this right. I assume that you all, everyone has understood it. ठीक है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन का स्लाइड. जल्दी से जिसको भी चाहिए जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना. इट इज अ, आप ये पढ़ लेना, इट इज अ फ्रैगमेंटेड सेंटेंस एंड ऑल दैट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन द प्रीवियस स्लाइड, बट जिनको चाहिए फॉर रिविजन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, चलो आगे बढ़ता. Why I have not been able to pay our rent on time is due to fact that I had not yet received my salary. ठीक है. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, why I have not been able to pay our rent on time is due to fact that I had not yet received my salary. ठीक है. So again we have a five part, fifth part is no error. ठीक है ना. तो ध्यान से पढ़ना. पहले क्या करना, आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि पहले इंडिविजुअल पार्ट्स पढ़ लो और देखो कि इसमें आ रहा है कि एरर या नहीं आ रहा है, एंड देन रीड द एंटायर स्टेटमेंट. ठीक है. So I'll read it again for you. Why I have not been able to pay our rent on time is due to fact that I had not yet received my salary. So to solve this question again, I'll be giving you 1 minute, and your time starts now.
Okay, so your time is up now. Time is up, guys. चलो देखते हैं. Why I have not been able to pay our rent on time. चलो, first part क्या है? Why I have not been. चलो, this part is correct. No issues. Why I have not been. अभी ये निगेशन वाला सेंटेंस है. ये निगेशन वाला मतलब नेगेटिव सेंटेंस है. सही यूज किया है. I have not been मतलब मैं कर नहीं पाया. I have not been क्या? Able to pay our rent on time. Able to pay our rent on time. ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. ये भी सही है. Able to pay our rent on time is due to fact that is due to fact that. अभी आप देखो ये इतना see if you are conversing more in English you will definitely identify the error with once you only if you read it. I'm so sorry. You will find this error if if you converse more in English. आपको पढ़ते ही ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गलती हो चुकी है. ठीक है ना. अब यहाँ पर गलती क्या हो गई है देखना. Why I have not been able to pay our rent on time is due to fact that. Due to fact नहीं होता. Due to the fact आएगा. Due to the fact that I had not yet received my salary. अब देखना यहाँ पर एक डेफिनेट कुछ तो फैक्ट है. ठीक है ना. कोई भी एक फैक्ट होगी. कोई भी एक फैक्ट मतलब यहाँ पर क्या एक इट इज एक्टिंग एज अ रीजन. इट इज एक्टिंग एज अ रीजन. कोई तो एक रीजन होगा जिसकी वजह से मैं रेंट टाइम पे भर नहीं पा रहा हूँ. तो ये रीजन क्या है? ये कोई तो एक डेफिनेट रीजन होगा. ठीक है ना. ये डेफिनेट रीजन होगा कि भाई वो रीजन है. फॉर एग्जाम्पल मेरी क्या वो सैलरी नहीं हुई है. आई हैव नॉट रिसीव माई सैलरी ऑन टाइम या आई हैव नॉट रिसीव माई सैलरी. तो सैलरी नहीं मिली है मुझे. सो दैट इज अ डेफिनेट थिंग. सो दैट फैक्ट इज डेफिनेट. दैट रीजन इज डेफिनेट. तो जब भी डेफिनेट कोई नाउन होता है या जो भी कोई चीज होती है तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द. किसका यूज करते हैं हम? वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द. तो यहां पर क्या होगा? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आई हैड नॉट येट रिसीव्ड माय सैलरी. हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट? क्या आप लोगों को ये समझ गया? ओके ओके ओके. सो यहां पर क्या होगा? पार्ट 3 में आपका एरर होगा. इज ड्यू टू फैक्ट नहीं होगा. इज ड्यू इसके बीच में क्या आएगा आपका? आएगा द. ठीक है ना. यहां पर आएगा आपका द. ठीक है. मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूं इसको. यहां पर आएगा आपका द. ठीक है ना. इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आई हैड नॉट येट रिसीव्ड माय सैलरी. हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट? क्या आप लोगों को ये समझा है? ओके 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 ओके. सो व्हाट आर द डाउट्स? जो भी डाउट होगा पूछ लेना. आई हैड नॉट येट रिसीव्ड. चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैड नॉट रिसीव्ड. आई हैव नॉट रिसीव्ड भी सही है. आई हैव नॉट रिसीव्ड भी सही है और नॉट येट रिसीव्ड ये भी सही है. कोई दिक्कत नहीं है. बोथ द यूजेस आर करेक्ट. Why I have not been able to pay our rent on time is due to the fact that I had not yet received. अभी तक मुझे मिली नहीं है सैलरी. इसलिए this usage of yet is also correct. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. ठीक है ना. The usage is absolutely correct. I had not received my salary yet. अगर आपको yet यहाँ सैलरी के बाद लिखना है तो वो भी सही है. आप इसके पहले भी लिख सकते हो. ठीक है ना. वो दोनों जगह पर ये सही है. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये रहा उसका आंसर की या आंसर का स्लाइड. जल्दी से फटाफट जिसको भी स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल दो. यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ठीक से. और जो भी मैंने बताया पिछले स्लाइड में वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगा. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन आई वेंट टू द मार्केट आई सॉ अ नंबर ऑफ कलरफुल फ्रेम्स वाज डिस्प्लेड इन द स्टोर विंडो. ठीक है. अनदर वेरी इजी क्वेश्चन. पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को. जिनको नहीं आता है वो ध्यान से पढ़िएगा पार्ट बाय पार्ट एंड देन रीड द एंटायर स्टेटमेंट वंस अगेन. ठीक है ना. या जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ पार्ट में गलती है और गलती का रिप्लेसमेंट आपको मिला तो पुट दैट रिप्लेसमेंट व्हाइल यू आर रीडिंग द सेंटेंस. और वहां पर अगर फिट बैठ रहा है तो वो भी आपको काम ही आ जाएगा. ठीक है ना. आई रीड इट पार्ट बाय पार्ट. व्हेन आई वेंट. ओके. ये हो गया पार्ट 1. टू द मार्केट आई सॉ. पार्ट 2.
A number of colorful frames was displayed. Part 3. In the store window. Part 4. ठीक है, अब ये पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ गया कहां पर एरर। जिनको नहीं समझ में आ गया देन मुझे समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पार्ट 1 में एरर है, तो मैं पार्ट 1 में जो एरर है उसको मैं रिप्लेस करूंगा जो मेरे दिमाग में। अगर वो जो मेरे दिमाग में वो यहाँ पर मैं रिप्लेस करूंगा और फिर पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर देखूंगा कि वो सही आ रहा है कि नहीं। सो ट्राई टू यूज दिस स्ट्रैटेजी, यू विल सेव टाइम, डू नॉट गो फॉर द ऑप्शंस। ठीक है ना, प्री फेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री फेजिंग मतलब ऑप्शन को बिना देखे पहले ही सॉल्व करना एंड देन रीचेक और रिकन्फर्म बाय गोइंग टू द ऑप्शंस। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? ओके, सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन आई विल बी गिविंग यू 1 minute एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, guys, so your time is up. Let us look at the correct answer. बहुत ही आसान था ये। When I went, ठीक है, when I went। अब ये पार्ट तो सही है, पास्ट टेंस में है, ठीक है ना, पास्ट टेंस में है। दिस इज इन पास्ट टेंस, सो पास्ट टेंस में होगा तो हमें पास्ट फॉर्म ही यूज करना है। अब वेंट का पास्ट फॉर्म क्या है? सॉरी, गो इज द बेस फॉर्म, ठीक है ना। V1 क्या है? गो। V2 क्या होता है? वेंट। और V3 क्या होता है आपका? V3 होता है गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर वेंट सही है, व्हेन आई वेंट। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, करेक्ट सेंटेंस सही है। देन व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, टू द मार्केट आई सॉ, टू द मार्केट आई सॉ। अगेन देखना, ये है सॉ, तो सी, सॉ, सीन, है कि नहीं? V1, V2, V3। अब यहाँ पर भी V2 का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी V2 है, यहाँ पर भी V2 है। पार्ट 2 में कोई दिक्कत नहीं है। A number of colorful frames was displayed, was displayed। अब देखना, was displayed in the store window। अब in the store window भी सही है, so 4 is सही, second one is सही and first part is also correct। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है पार्ट 3 में। A number of colorful frames was displayed। ठीक है ना। अब यहां पर देखना, फ्रेम्स, ठीक है ना, कहां लिख दो? यहां पर लिख देता हूं। क्या है? फ्रेम्स। फ्रेम्स अब सिंगुलर है कि प्लूरल है? चलो चलो जल्दी बताओ मुझे। फ्रेम्स जो है, फ्रेम सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्लूरल है।
अब ये फ्रेम जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल होगा, ये बताना जल्दी। चलो प्लूरल तो है, सही जवाब दिया आप लोगों ने, लेकिन ये कौन से पर्सन में आएगा? देखो एक टेबल बना के रखते हैं, ठीक है ना। क्या होता है वो टेबल? ये टेबल, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप लोगों को लगेगा कि यार ये एकदम बच्चा टाइप लग रहा है, या छोटे बच्चों का ये खेल है, या बचपन में किया था, हमें जरूरत नहीं, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप ये टेबल हमेशा याद रखना, बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या होता है इसमें? इसमें होता है आपका सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई, प्लूरल क्या होता है? वी। यू होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू होता है सेकंड पर्सन प्लूरल। ही, शी, इट is your third person singular and they is your third person plural, ठीक है। अब देखना फ्रेम्स क्या है। द फ्रेम्स वर, द फ्रेम्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रेम्स क्या है? फ्रेम्स इज अ नाउन, नाउन है और ये प्लूरल भी है, ठीक है ना। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? आई हैव 20 फ्रेम्स इन माई हाउस, दे आर ऑल ब्यूटिफुल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ स्टेटमेंट, आई हैव 20 frames in my house, ठीक है। आई हैव 20 फ्रेम्स, ठीक है ना। अभी ये फ्रेम्स आ गए, आई हैव 20 फ्रेम्स इन माई हाउस। अभी इसी को और एक स्टेटमेंट लिखना है कि वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या करूंगा? इस फ्रेम को वापस से रिपीट नहीं करूंगा। हम क्या करते हैं? वो नाउन को रिपीट नहीं करते, नाउन का सब्स्टिट्यूट लाते हैं, दैट इज अ प्रोनाउन। सो दे आर ब्यूटिफुल, दे आर ब्यूटीफुल। क्या लिखा मैंने? दे आर ब्यूटीफुल, दे आ गया। दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? आर आता है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आर आता है, पास्ट टेंस में होगा तो क्या आएगा? अब यहां पर देखो, मैंने हैव की जगह पर, ठीक है ना, हैव को रिप्लेस करके मैंने अगर हैड लिख दिया, आई हैड 20 फ्रेम्स इन माई हाउस, दे वर ब्यूटीफुल। पास्ट में है तो हैव आएगा, आर आएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर हैव क्या दर्शाता है? प्रेजेंट टेंस दिखाता है। प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा आपका? आर आएगा, लेकिन मैंने पास्ट टेंस कर दिया, तो पास्ट टेंस में क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है ना। फ्रेम्स क्या है? फ्रेम्स प्लूरल है, तो वॉज इज नॉट करेक्ट। वॉज की जगह पर आपको क्या आना चाहिए था? वॉज की जगह पर चाहिए था वर। आई बात समझ में? ठीक है ना। ये टेबल याद रखना, आई के साथ क्या जाता है प्रेजेंट टेंस में? एम, पास्ट टेंस में वॉज, बी के साथ आर, पास्ट टेंस में वर, यू के साथ प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर। सेम विथ ओवर हियर, यहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं होता, प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर। ही शी इट के साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, और यहां पर प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर। हमारे यहां पर क्या आ गया? फ्रेम्स के साथ कौन सा प्रोनाउन जुड़ता है? तो जुड़ता है दे प्रोनाउन। तो दे है पास्ट टेंस में, अगर ये है तो सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? वॉज की जगह पर वर। करेक्ट आंसर विल बी, when I went to the market I saw a number of colorful frames। वॉज की जगह पर होना चाहिए था वर, वॉज की जगह पर होना चाहिए था वर displayed। हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट? क्या आप लोगों को ये बात समझी? डिड यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन? ओके ओके फाइन, ओके फाइन। चल, चलो जी, देन आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन वाला स्लाइड। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट निकाल दो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, और फॉर योर फ्यूचर फॉर द रीडिंग्स और रिविजन, व्हाटएवर इट इज। विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया आई ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इंडियंस suffer because they are not able to control their emotions, and this hamper their daily life, ठीक है। आई रीड इट वंस अगेन फॉर यू, दिस इज अगेन वेरी इजी, ठीक है ना। ढंग से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया आई, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, आई ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इंडियंस, पार्ट 2। पार्ट 3, suffer because they are not able to control their emotions,
Part 4. And this hamper their daily life. Okay. Now I'll read it once again in one go. During my visit to India, I observed that most of the Indians suffer because they are not able to control their emotions, and this hamper their daily life. Okay. So to solve this question, I again give you 1 minute and your time starts now. Okay, so your time is up. Let us look at the question now. During my visit to India, I observed. अब ये past का चीज बता रहा है कि जब मैं आया था during my visit to India, I observed. तो definitely it will be in past. So ये सही है. First वाला भी correct है. During my visit to India, I observed that most of the Indians, ठीक है, Indians है, ये भी correct है. Suffer because they are not able to control. अब ये देखो, Indians क्या है? Indians is plural. ये plural है. Indians suffer. एन इंडियन सफर्स. ठीक है ना. सिंगुलर होगा तो सफर्स आता है ना. प्लूरल है इसलिए सफर हो गया. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सही से बैठ रहा है. सफर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस. अब ये भी प्लूरल आ गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. पार्ट 3 इज ऑल्सो करेक्ट. एंड दिस हैम्पर देयर डेली लाइफ. एंड दिस हैम्पर देयर डेली लाइफ. अब देखना पार्ट 4 में एरर है. हाँ जी, पार्ट 4 में आपका एरर आ गया है. चलो अब देखते हैं. पार्ट 4 में आपका एरर है. अब देखते हैं कैसे. ठीक है ना. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक से समझना. अब ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इंडियंस. ठीक है ना. अब इसने क्या बोला? पहले इंडियंस बोला. पहले क्या बोला? इंडियंस. इंडियंस प्लूरल है ना. इंडियंस, दिस इज प्लूरल. प्लूरल है इसलिए इसने वर्ब भी सही से इस्तेमाल किया. सफर. इंडियंस सफर. इंडियन सफर्स. तो इंडियंस प्लूरल है इसलिए सफर सही किया. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस. अब यहां पर उसने इमोशंस भी सही से इस्तेमाल किया है. ठीक है ना. मतलब ये क्या है कि प्लूरल वाली चीजें बता रहे हैं. तो दिस हैम्पर्स, अगर ये दिस नहीं होता तो हैम्पर्स आना चाहिए था या हैम्पर आना चाहिए था. ठीक है ना. आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशन एंड हैम्पर देयर डेली लाइफ. तो ये सही होता. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से
critical, for example, if I say critical situation hampers मतलब खराब कर देता, ठीक है ना, hampers critical situation hampers performance, चलो ऐसे लिख दिया, critical situation hampers परफॉर्मेंस, अगर मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या हो गया देखो, क्रिटिकल सिचुएशन, अब सिचुएशन क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है, सिचुएशन वो हियर इज सिंगुलर, तो प्लूरल वर्ब आ गया, ठीक है ना, तो यहां पर हैम्पर्स हो गया। अभी इसी को बदल देते, क्रिटिकल सिचुएशंस कर देते, ठीक है ना, बाकी सारा स्टेटमेंट सही रहेगा, सेम रहेगा, सॉरी, क्रिटिकल सिचुएशंस हैम्पर हैम्पर परफॉर्मेंस। अब ये प्लूरल हो गया तो यहां पर एस हट गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या, पूरा सेंटेंस में इसने प्लूरल यूज किया, इंडियंस, फिर इमोशंस, ये सारी चीजें इसने प्लूरल में यूज की है, लेकिन दिस का जो उपयोग किया है, जो यूज किया है, दिस का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर हैम्पर नहीं आएगा, यहां पर हैम्पर्स आएगा, ठीक है ना, हैम्पर्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, देखो दिस जो है ना, दिस डिनोट्स और सिग्निफाइज और डिटरमाइंस सिंगुलैरिटी, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। द बॉय, या लेट्स से द बॉय छोड़ो, बॉय प्लेज क्रिकेट, बॉय प्लेज क्रिकेट। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि दिस बॉय प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना। अब सिंगुलर है इसलिए मैंने क्या यूज किया, दिस किया। अब इसी को हम प्लूरल में कर देते, इसी को हम प्लूरल में कर देते, थोड़ा यहां लिख देता हूं कि बॉयज प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, क्या लिखा मैंने, बॉयज प्ले क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट। अब यहां पर क्या था, बॉय था, सिंगुलर था, यहां वर्ब कैसे आ गया, एस लग गया, प्लूरल हो गया। अब बॉय को मैंने बॉयज कर दिया, मैंने नाउन को प्लूरल कर दिया, तो बॉयज प्ले क्रिकेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने बॉय को क्या किससे रिप्लेस किया, कौन से डिटरमाइनर से रिप्लेस किया, दिस से किया। यहां पर मैं क्या करूंगा, दिस बॉयज प्ले क्रिकेट ऐसा लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, दीज बॉयज प्ले क्रिकेट, दीज बॉयज प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तो प्लूरैलिटी दर्शाता है दीज दोज, सिंगुलैरिटी दर्शाता है दिस, ठीक है ना। यहां पर क्या है, दिस का इस्तेमाल किया है, इट इज डिनोटिंग सिंगुलैरिटी, व्हाट इज इट डूइंग, इट इज डिनोटिंग सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी अगर होती है तो वर्ब को एस लगता है, यहां पर हैम्पर को एस नहीं था, तो क्या लगेगा यहां पर, हैम्पर को एस लगेगा, एंड हैम्पर विल बिकम हैम्पर्स देयर डेली लाइफ। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया आई ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इंडियंस सफर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशन, एंड दिस हैम्पर की जगह पर होना चाहिए था, हैम्पर की जगह पर होना चाहिए था हैम्पर्स, क्या होना चाहिए था, हैम्पर्स, ठीक है। सो द एरर इज इन पार्ट 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया, डिड यू गाइस गेट द एक्सप्लेनेशन करेक्टली, ओके फाइन, चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट हियर इज द स्लाइड व्हिच हैज द एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। Without wasting any time, let's delve into the next question, that is question number, that is question number 5, ठीक है। So I'll read it for you. He neither has enough time or is fascinated by the project, as is running his own business, which often takes him out of the station. ठीक है, I'll read it again for you. This is again a very easy question. He neither has enough time or is fascinated by the project, as is running his own business, which often takes him out of the station. Okay, a very easy question, but I will still give you 1 minute to solve this, and your time starts now.
Okay, guys. So your time is up. A very easy question. चलो सॉल्व करते हैं इसको. चलो. He neither has enough time. पार्ट वन में क्या कह रहा है? He neither has enough time. अब neither का इस्तेमाल हो गया. और is fascinated. अब देखना बहुत ही आसान एरर था. और अब और का इस्तेमाल होता नहीं है. और की जगह पर क्या होना चाहिए था? इट शुड हैव बीन नॉट. ठीक है ना. अब कुछ कुछ कंजंक्शन होते हैं जो पेयर्स में आते हैं. जैसे नाइदर के साथ क्या लगता है आपका? नाइदर नॉर, आइदर, और, या एंड के साथ भी और जाता है. एंड और. तो ये हमेशा पेयर में आते हैं. ठीक है ना. और दो जगह पे आता है. इट कैन कम विद आइदर, या फिर ये एंड के साथ आता है. लेकिन और जो है वो नाइदर के साथ नहीं आता है. ठीक है ना. और विल नेवर कम विथ द वर्ड नाइदर. नाइदर के साथ क्या आता है? नाइदर के साथ हमेशा आपका नॉर ही आएगा. अब यहाँ पर एरर क्या हुआ है? इधर आइदर होता तो वहां पर और होता. लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नाइदर है, इसलिए वहां पर क्या आएगा? वहां पर नॉर ही आएगा. सो ही नाइदर हैज इनफ टाइम नॉर इज फैसिनेटेड बाय द प्रोजेक्ट. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. पार्ट टू में आपका एरर है. और की जगह पर होना चाहिए था नॉर. ठीक है. हैव यू गाइस अंडरस्टूड? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Okay, okay, very good. Okay, very good. So I'll just show you the slide of explanation. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल देना so that we can move to the next question quickly. Okay, चलो. I assume that everybody has taken the screenshots if required. Let's go ahead to question number 6. I'll read it once for you guys. He was to about say something to her when the others realized it and knocked him on the head and dragged him away. ठीक है ना. फिर से पढ़ लेता हूँ. पार्ट बाय पार्ट पढ़ लेता हूँ. पार्ट वन क्या कह रहा है? He was to about say something. He was to about say something. पार्ट टू, to her when the others. ठीक है जी. पार्ट थ्री, realized it and knocked him on. एंड पार्ट फोर, द हेड एंड ड्रैग्ड हिम अवे. ठीक है. अब एक बार फिर से पूरा का पूरा पढ़ लेता हूँ. ही वॉज टू अबाउट से समथिंग टू हर व्हेन द अदर्स रियलाइज्ड इट एंड नॉक्ड हिम ऑन द हेड एंड ड्रैग्ड हिम अवे. Again, a very easy one, but still I'll be giving you 1 minute to solve this, and your time starts now. Okay, guys, your time is up. Let us look into this. He was to about say something. अब देखना. He was to about say something. पहले पार्ट में ही गलती है. आगे जाने की जरूरत भी नहीं. अब देखना सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का ये दिक्कत. जनरली सेंटेंस कैसा स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी, ठीक है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। अब वर्ब क्या है? वॉज। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, सो ही। अब वर्ब कैन बी हेल्पिंग वर्ब और इट कैन बी मेन वर्ब ऑल्सो, ठीक है ना। सो ही वॉज, तो यहाँ पर क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, तो फिर आपका वर्ब आ गया, उसके बाद अबाउट आएगा, एंड उसके बाद आपका टू आएगा। टू अबाउट नहीं होता, इट इज ऑलवेज अबाउट टू। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस whatever phrase or whatever object you have in the sentence. अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो अलग होता है। क्वेश्चन करेंगे तो क्या होता है? पहले वर्ब आता है, was, पहले वर्ब आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट was ही, ठीक है ना, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर ये नहीं था, ठीक है, यहाँ पर बस होगा was he about to question, ठीक है। अब प्लेन इसमें क्या लिखा हमने? नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखा? पॉजिटिव सेंटेंस में ही वाज अबाउट टू क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन करने ही वाला था। अगर इसी का मैंने क्वेश्चन बना दिया क्वेश्चन फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? वाज ही अबाउट टू क्वेश्चन, और यहाँ पर डाल देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर देखो कैसा रहा, पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस में कैसा होगा? पहले वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन दोनों सिचुएशंस में टू जो है वो अबाउट के बाद ही आएगा, ठीक है ना। दोनों सिचुएशंस में टू जो है वो अबाउट के बाद ही आएगा। हैव यू गॉट दिस? क्या आपको ये समझ में आ गया? ओके ओके। यहाँ पर क्या होगा? वॉज टू की जगह पर होना चाहिए, सॉरी, टू अबाउट की जगह पर होना चाहिए था अबाउट। एरर लाइज इन पार्ट वन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखना ये है आपका स्क्रीन फॉर योर, सॉरी, आंसर स्लाइड ये है ये। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, तो जिसको चाहिए, जिनको चाहिए वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाले, ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सके। I assume you have taken the screenshots, and here we have the next question, that is question number 7. The Ulster Defense Association has recently hinted that it may be prepared to attack on dissident Republicans. Okay? I'll read it part by part now. The Ulster Defense Association has, part 1 हो गया ये, part 2 पढ़ता हूँ. Recently hinted that it, okay जी, part 3, may be prepared to attack, fine. Part 4, on dissident Republicans. I'll read it once again in one go. The Ulster Defense Association has recently hinted that it may be prepared to attack on dissident Republicans. Okay? And this is also quite easy. Okay? And for this also, I'll be giving you 1 minute to solve it, and your time starts now. Okay, guys, so your time is up. Let us look at the question now. This is very easy. The Ulster Defense Association has. Okay?
So no error. ये present for tense में आ रहा है sentence. So no error in this. Part one is right. Recently hinted that it. Recently hinted that it. अब ये भी सही है कि अभी अभी इन्होंने हिंट किया था, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म आएगा वर्ब का. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. मे बी प्रिपेयर्ड. मे बी प्रिपेयर्ड में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज हो रहा है, तो मे बी प्रिपेयर्ड इज ऑल्सो अगेन. अब ये प्रिपेयर का पास्ट फॉर्म है, प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड बन गया, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी है इसलिए इट इज करेक्ट यूजेज, कोई दिक्कत नहीं. मे बी प्रिपेयर टू अटैक ऑन डिसिडेंट रिपब्लिकन्स. मे बी प्रिपेयर टू अटैक ऑन डिसिडेंट रिपब्लिकन्स. ठीक है, तो यहां पर आपका एरर जो है, द एरर लाइज इन पार्ट 4. द एरर लाइज इन पार्ट 4. व्हाई? आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. अब देखना, ये जो अटैक है, ये अटैक हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब. ठीक है ना, प्रिपेयर टू अटैक. अब ये जो है, ये अटैक जो वर्ब है यहाँ पर वर्ब की तरह, सॉरी अटैक जो वर्ड है ये वर्ब की तरह यूज हुआ है. इट इज कॉल्ड एज इंफिनिटिव. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज एन इंफिनिटिव. फुल इंफिनिटिव होता है. 2 + V1 इज फुल इंफिनिटिव. सो इंफिनिटिव है मतलब वर्ब है. जब भी अटैक वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है ना, जब भी अटैक वर्ब की तरह काम करता है, इट डज नॉट टेक एनी preposition. It does not take any preposition. For example, if I have to say that I want to attack, I want to attack, what we can say, I want, I want to attack anti-nationalists. ठीक है, वैसे I don't want to attack them, but to explain you, I will tell you that. अब यहाँ पर देखना, I want to attack. अब ये to attack क्या हो गया? This is acting as a verb. वर्ब होता है तो उसके बाद सीधा आपका वो नाउन आ जाएगा. ठीक है, आई वॉन्ट टू अटैक ऑन एंटी नेशनलिस्ट, ये नहीं होता है. ठीक है ना, जब अटैक ये वर्ब का काम करता है तब इट डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन. कोई भी प्रेपोजिशन उसके बाद नहीं आएगा. ठीक है ना, बट अगर नाउन की तरह करता है तो प्रेपोजिशन आता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर वॉज एन अटैक. देयर वॉज एन अटैक ऑन the parliament. If I write like this, there was an attack on the parliament. अब यहाँ पर क्या हो गया? I want to attack में वर्ब की तरह काम कर रहा है. वर्ब की तरह काम कर रहा है तो कोई भी preposition फॉलो नहीं करेगा. There was an attack. अब यहाँ पर attack is acting as a noun, तो क्या आएगा उसके बाद में? उसके बाद में आएगा आपका preposition. ठीक है, अब ध्यान से देखना, पार्ट 3 में क्या है? May be prepared to attack. ठीक है ना, टू अटैक मतलब वर्ब है, इंफिनिटिव है, फुल इंफिनिटिव है. फुल इंफिनिटिव मतलब वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये ऑन नहीं आना चाहिए. ठीक है ना, ये ऑन नहीं आना चाहिए. इधर क्या होगा? मे बी प्रिपेयर टू अटैक डिसिडेंट रिपब्लिकन्स. ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? ठीक है ना, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? द अल्स्टर डिफेंस एसोसिएशन हैज रिसेंटली हिंटेड दैट इट मे बी प्रिपेयर टू अटैक. पार्ट 4 में होगा, ऑन नहीं आएगा. इट मे बी प्रिपेयर टू अटैक डिसिडेंट रिपब्लिकन्स. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है ना, पार्ट 4 में आपका एरर. हैव यू गाइस अंडरस्टूड इट? क्या आपको ये समझ में आ गया? ओके जी, फाइन फाइन. चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर यू हैव द आंसर स्लाइड. जिसको भी चाहिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालना. ठीक है, ओके. सो we'll stop here for today's session. The next session when we'll begin, we'll continue with from question number 8. So that is it for the day, guys. Thank you so much and see you soon for the next session.